Hello everyone, this is Parini Gaurav Nagda. In today's video, we will learn about the other kinds of pronouns. In my last video, I have shared two kinds of pronouns. First, personal pronoun and second, reflexive pronoun. Let us have a quick revision of these two pronouns. Personal pronoun is the pronoun which is used in the place of name of a person. Okay, for example, I, you, he, she, it, we, they. These all are personal pronouns. Now second one is reflexive pronoun. Reflexive pronoun means those pronouns which are used to reflect or which are reflecting towards the noun. Again, okay, for example, himself, herself. She completed the work herself. खुद से. Okay, herself, himself, themselves, myself, yourself, yourselves. So these all are the examples of reflexive pronoun. Now we will do emphatic pronoun. Emphatic pronouns which are used for the sake of emphasis are called emphatic pronouns. The pronouns which are used for the sake of emphasis. Sake of emphasis means emphasis का मीनिंग होता है किसी चीज़ को इम्पोर्टेंस ज़्यादा देना, किसी चीज़ पर जोर देना. ओके, तो प्रोनाउंस ऐसे प्रोनाउंस जो जोर देने के लिए या फिर किसी चीज़ को इम्पोर्टेंस देने के लिए यूज़ होते हैं, they are called emphatic pronouns. These pronouns are used to show that the work is done by the noun itself. मीन्स ये आपको सिर्फ ये बताते हैं कि उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ाते हैं. एट द सेम टाइम ये आपको बताते हैं कि जो वर्क है वो उसी नाउन ने किया है, मीन्स उसी वर्कर ने वो वर्क किया है. दीज गिव more importance to noun and these pronouns used to give more importance to noun. One important note is here, an emphatic pronoun can be removed from the sentence without affecting its real sense. You may be confused with reflexive pronoun and emphatic pronoun. तो reflexive और emphatic pronoun में सबसे major difference is this only, this note. That means अगर emphatic pronoun में से आप emphatic जो pronoun है, that means अगर sentence में से emphatic pronoun आप हटा देंगे, then sentence will not be affected, its meaning will not change. If you remove the emphatic pronoun from a sentence, then its real sense, its real meaning will not change, it will remain same. Let us see the example. The thief himself called the police. So here himself is the emphatic pronoun. Suppose sentence is the thief called the police. It's correct. Thief ने पुलिस को बुलाया. This sentence is correct. This sentence is meaningful. And if you are saying the thief himself called the police, that means you are giving more importance to this thief. कि thief ने खुद ने ही पुलिस को बुला लिया. This sentence is like this, that the thief himself called the police. I myself will do it. If the sentence is I will do it, this sentence is also correct. मैं वो काम करूँगा. I will do it. But if you are saying I myself will do it, that means मैं खुद ही ये काम कर लूँगा और मैं खुद ही ये काम कर लूँगी. They themselves got into a trouble. वो खुद ही अपनी दुविधा में या अपनी प्रॉब्लम में फंसे. They themselves. You yourself can understand it. अब suppose the sentence is you can understand it. Correct है, आप इसको समझ सकते हैं. You can understand it. But if you are saying you yourself can understand it, that means in this sentence जो you है, इस you के ऊपर ज़्यादा प्रेशर आ रहा है कि आप खुद ही समझ सकते हो. Okay. The man himself hurt his friend. Suppose the sentence is the man hurt his friend. Correct है, उसने एक man ने अपने friend को hurt किया. Correct. But if you are saying the man himself hurt his friend, this is also correct. आप man पे ज़्यादा emphasis दे रहे हैं, आप noun पे ज़्यादा focus कर रहे हैं. He himself completed his work. He himself completed his work. Himself.
उसने खुद ने ही अपना वर्क कंप्लीट किया है. द कैट इटसेल्फ जम्प्ड हाई. कैट ने खुद ने ही जंप किया है, हाई जंप किया है. शी हरसेल्फ कॉल्ड द टीचर. उसने खुद ने ही टीचर को कॉल किया. शी हरसेल्फ. सो आई होप emphatic pronoun is clear to you. These pronouns are used for the sake of emphasis, for giving importance. Okay, and if we remove emphatic pronoun from a sentence, the meaning of that sentence will not change. It will remain the same. Okay, next is demonstrative pronoun. Demonstrative pronoun means the pronouns used to point out objects are demonstrative pronouns. See, point out object means किसी ऑब्जेक्ट को अगर आप पॉइंट कर रहे हो, किसी ऑब्जेक्ट के बारे में आप बता रहे हो, दैट इज पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट. और वो जो प्रोनाउंस यूज होंगे किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में बताने के लिए कि यह ऑब्जेक्ट यहाँ पर है या वो ऑब्जेक्ट. हम हिंदी में बोलते हैं ना, यह ऑब्जेक्ट या वह. यह मीन्स जो हमारे पास में है, वह मीन्स जो हमसे दूर है. ओके, सो इन इंग्लिश ऑल्सो द सेम थिंग. दिस इज अ टॉय. ये यू कैन सी द टॉय इज नियर. सपोज टॉय इज इन योर हैंड और टॉय इज जस्ट नियर यू, देन व्हाट यू कैन से, दिस इज अ टॉय. यह एक खिलौना है. दैट मीन्स ये आपके पास में. और आई एम सेइंग टॉय, नॉट टॉयज. दैट मीन्स सिंगुलर. तो फर्स्ट थिंग क्या है, नियर, and second is singular. Okay, first is near and second is singular. तो कोई भी चीज़ जो आपके पास में है और सिंगल है मीन्स वन है. सेकेंड एग्जाम्पल, दिस कैट इज वाइट. कैट, दिस इज वन कैट एंड दिस इज नियर. तो दिस कैट इज वाइट. ओके, अब इसका अपोजिट, अपोजिट इज दिस का अपोजिट क्या होता है, दैट. जैसे हिंदी में होता है यह का अपोजिट क्या होता है, वह. That means the thing which is far, which is not near us. हमारे पास में नहीं है, वो हमसे दूर है. Okay, at a distance. So that is an elephant. You can see elephant यहाँ के just, इसके just पास में नहीं है, थोड़ा सा दूर है. Here it is थोड़ा सा दूर. But okay, normally you can say like suppose you are standing on your terrace and elephant is walking on road. Then what can you say? That is an elephant. आप अपने टेरेस से रोड पे चलने वाले एलिफेंट के लिए क्या बोलेंगे, दैट इज एन एलिफेंट. आप एलिफेंट के पास में हैं. सपोज इफ यू आर गिविंग अ बनाना टू द एलिफेंट, देन यू कैन से दिस इज एन एलिफेंट. मीन्स आप उसके पास में खड़े हैं. बट अगर आप उससे दूर हैं, देन व्हाट विल यू से, दैट इज एन एलिफेंट. इन द सेम मैनर यू कैन सी दैट मैन इज वॉचिंग अ मूवी. यू मे फाइंड वेयर इज द मैन. लेट मी शो यू द मैन. मैन इज हियर. सी दिस. So that man, okay, this one, that man is watching a movie. That means कोई man है जो दूर है. The man is not near. Therefore we are using that. Okay, and man is singular, one only. Therefore we are using again that. Okay, so this is used for singular which is near. That is used for singular only which is far. अब singular के बारे में हो गया. Next is plural. वॉट इफ अगर टॉय एक से ज़्यादा है हमारे पास, तो वॉट विल यू यूज, दीज. सी दिस एग्जाम्पल, दीज आर बुक्स. ये बुक्स पास में है और एक बुक नहीं है, एक से ज़्यादा है, प्लस वन है, मीन्स वन प्लस है, मोर देन वन है. देन वॉट विल यू से, दीज. वॉट विल यू से, दीज, नॉट दिस. दिस मीन्स वन और दीज मीन्स मोर देन वन. और पास में, these pen are mine. So the pen are near. The pen are in my hand. Suppose मेरे हाथ में pens हैं. Then what will I say? These pens are mine. These. Okay. और just opposite to is are those. Now see. Those cows are grazing. अभी मैं फील्ड में नहीं हूँ, मैं अपने घर पे हूँ. और सपोज काउज नीचे या कहीं आगे थोड़ा दूर ग्रेज कर रही हैं. व्हाट विल यू से, दोज काउज आर ग्रेजिंग. एंड इमेजिन इफ काउज की जगह वन काउ होगा तो व्हाट विल वी यूज, दैट काउ इज ग्रेजिंग. एंड हियर मोर देन वन है, दैट्स व्हाई व्हाट आर वी यूजिंग,
Those cows are grazing. Okay, see this. Those stars are twinkling. Star हमारे पास हैं नहीं, स्टार हमसे दूर हैं. That's why what are we saying? Those stars are twinkling. Okay, so this is for near thing. That is for the thing which is far. These near things only, but plural. Those, the things or the person or the object which is far but which is plural, more than one. Okay, so this was demonstrative pronouns. Now after demonstrative pronoun is indefinite pronoun. Indefinite का मीनिंग होता है जो आप एक गिनती नहीं कर रहे हैं, आप काउंट नहीं कर रहे हैं. मैं 2 या 3 पर्सन के बारे में नहीं बोल रही हूँ, एक बस नंबर गैस कर रही हूँ. सपोज देयर आर मैनी स्टूडेंट्स, तो व्हाट आई विल से मैनी. मैंने काउंट नहीं किया है वो 10 है, 20, 15 है. आई डू नॉट नो द नंबर. आई एम जस्ट सेइंग जनरली. ओके, तो इंडेफिनिट प्रोनाउंस, द प्रोनाउंस विच रेफर टू पर्सन इन अ जनरल वे. जनरल मीन्स ऐसे ही आपने गैस कर लिया, आपने उसको पर्टिकुलर पर्सन के बारे में नहीं बोल रहे हैं आप. सपोज एक क्लास ने कुछ गलती कर दी, तो व्हाट विल यू से? द स्टूडेंट्स. आप एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के बारे में नहीं बोलेंगे, उन सब के बारे में बोलेंगे. ऑल ऑफ देम हैड डन naughty things or all of them had done a mistake. All. आप एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के बारे में indefinite pronoun पे यूज नहीं करेंगे. Indefinite pronouns are the pronouns which refer to person in general. वो पर्सन उसमें भी आ जाएगा और उसके साथ दूसरे लोग भी आ जाएंगे. दैट मीन्स जनरली सबको एक साथ लेकर आप बता रहे हैं. आप किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं या पर्टिकुलर थिंग के बारे में बात नहीं कर रहे हैं. सो indefinite pronouns are the pronouns which refer to a person in a general way, which tells you about person in general way, not in particular manner. Okay, let us see examples. All are invited in the party. What is the sentence? All are invited. Sabhi. I am not telling about particular student or particular person or particular member. I am telling that all are invited. आप जो भी हैं आप सब invited हैं. अब आप कौन कौन है आई डू नॉट नो, बट आप सभी इन्वाइटेड है. ओके, आई डिड नॉट सी एनी ऑफ देम हियर. मैंने उनमें से एक को भी नहीं देखा. मैं ये नहीं बोल रही कि मैंने उस बॉय को नहीं देखा है, उस गर्ल को नहीं देखा. व्हाट आई एम सेइंग, मैंने उनमें से किसी को भी नहीं देखा. किसी को, दैट मीन्स एनी. मैनी ऑफ देम आर माई फ्रेंड्स. उनमें से कई मेरे दोस्त हैं. मैनी ऑफ देम, सपोज अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स और ग्रुप ऑफ boys are standing or group of girls is standing. So what will you say? उनमें से काफ़ी मेरे friends हैं. Okay, so many of them are my friend. अब कौन कौन है I do not know that. I am not saying you उनमें से कौन कौन मेरे friends हैं. What am I saying? Many of them. उनमें से काफ़ी सारे मेरे friends हैं. Can anyone answer the question? Suppose teacher asked a question in class. Okay, and teacher is not saying that पर्टिकुलर स्टूडेंट स्टैंड अप एंड आंसर द क्वेश्चन. सपोज स्टूडेंट्स में एक राम भी है, तो वो एक पर्टिकुलर राम स्टूडेंट से नहीं कह रही हैं. व्हाट द टीचर इज सेइंग, जनरली कह रही हैं क्या कोई भी मेरे क्वेश्चन का आंसर दे सकता है. कैन एनीवन आंसर द क्वेश्चन? कैन एनीवन आंसर द क्वेश्चन? ओके, सो द प्रोनाउन हियर इज एनीवन. एनीवन मीन्स कोई भी एक, कोई भी. Have you eaten anything? Anything. Anything means कुछ भी, कोई चीज़, कुछ भी. क्या आपने कुछ भी खाया? I am not asking whether you ate वड़ा पाव और पाव भाजी. मैंने ये नहीं पूछा. मैंने क्या पूछा? आपने कुछ भी खाया? Anything. Okay, so general. One should know one's limit. One should know means यहाँ पर आपके या मेरे बारे में बात नहीं हो रही है. What the sentence is telling that one should know. आपको भी पता होना चाहिए, मुझे भी होना चाहिए और सभी को होना चाहिए. हर एक पर्सन को अपनी लिमिट्स पता होनी चाहिए. One should know one's limits. None of the students are absent. कोई भी स्टूडेंट एब्सेंट नहीं है. None. कोई भी नहीं. Some children are born great. कुछ children
बर्ड से ही ग्रेट होते हैं कुछ. Somebody has stolen my watch. Somebody, that means किसी ने तो मेरी वॉच चुराई है. Somebody, I do not know who, but somebody. Nobody came late, कोई भी लेट नहीं आया. That means all came in time. कोई भी लेट नहीं आया. That means nobody came late. So indefinite pronouns are the pronouns which are telling you something about general. सबके बारे में, एक जनरली आप बता रहे हैं, आप किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में यह बात नहीं कर रहे हैं. नेक्स्ट इज क्वाइट अपोजिट टू दिस, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव. अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? द प्रोनाउंस विच रेफर टू पर्सन और थिंग एट अ टाइम. मीन्स एक पर्सन के बारे में एक टाइम पर आप एक पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं. इनडेफिनेट में हमने एक टाइम पर एक ग्रुप के बारे में कहा, जैसे ठीक है, एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में नहीं कहा, एक जनरली बात कही है. बट यहाँ पर आप एक टाइम पर एक पर्सन के बारे में बात करेंगे. यू विल टॉक अबाउट अ पर्सन और अ थिंग एट अ टाइम. एट अ टाइम मीन्स एक टाइम पर एक जने के बारे में. ओके, दीज आर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस. दे आर ऑलवेज कंसिडर्ड एज सिंगुलर. दे आर ऑलवेज कंसिडर्ड एज सिंगुलर. उनको हमेशा आप सिंगुलर ही कंसिडर करेंगे और उनके साथ जो वर्ब यूज करेंगे वो भी एवरी टाइम सिंगुलर ही रहेगी. Now important note is given, either or neither. It is example of distributive pronoun. Either or neither should be used only in speaking about two person or two things. Every time remember ये जो दो words हैं, either or neither. You might have heard these words, either, neither. Sometimes they are used like either or neither nor. So these pronouns, these distributive pronouns should be used only for two person or two things. 3 के बारे में भी नहीं, 1 के बारे में भी नहीं, only for 2. Now before going there, we will see these examples. Each of the boys gets prize. Now see, each of the boys gets prize. जो each है आपका distributive pronoun है, जो एक टाइम पे एक जने के बारे में बात कर रहा है. ठीक है, it is talking about a person एट अ टाइम, एक टाइम पे एक जने के बारे में. फाइन. एंड सी, कंसिडर्ड सिंगुलर, तो यहाँ पे गेट्स यूज हो गया. ठीक है, दैट मीन्स ईच ऑफ द बॉयज गेट्स प्राइज. इनमें से हर एक बॉय को प्राइज मिलेगा, हर एक बॉय को. आई एम नॉट सेइंग दैट ऑल, आई एम नॉट सेइंग सम. मैं क्या बोल रही हूँ? हर एक बॉय को प्राइज मिलेगा. ईच ऑफ द गर्ल्स इज लुकिंग ब्यूटिफुल. इन सभी गर्ल्स में से हर एक गर्ल अच्छी लग रही है. सभी गर्ल्स में से हर गर्ल, एक एक गर्ल अच्छी लग रही है. द टू मैन हेट ईच अदर, ईच हेट्स द अदर. सी, इट इज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड बट नो इट इज नॉट. इफ यू विल अंडरस्टैंड यू विल कम टू नो. द टू मैन हेट ईच अदर. दो आदमी एक दूसरे से नफरत करते हैं. और सेकेंड में वही दे रखा है, ईच हेट्स द अदर. एक दूसरे से मीन्स एक पर्सन दूसरे पर्सन से नफरत करता है. Two men hate each other. Each other means एक दूसरे से. Each, हर एक जना दूसरे से नफरत करता है. I bought these horses for 500 rupees each. Means मैंने ये horses purchase किए, but 500 rupees each. That means हर एक horse को मैंने 500 rupees में purchase किया. सब horse 500 में परचेज नहीं करे, मैंने ये सब हॉर्स परचेज किए, बट हर एक हॉर्स के लिए मैंने 500 रुपीज़ दिए. तो हर एक पर्टिकुलर हॉर्स के बारे में बता रहे हैं दैट इस हॉर्स के लिए मैंने 500 रुपीज़ दिए और ऐसे ही मैंने 2 हॉर्स परचेज किए. दैट मीन्स ईच 500 रुपीज़ ईच, हर एक हॉर्स के लिए एक. ठीक है, पर्टिकुलर आई एम टेलिंग यू हियर. नाउ सी दिस वन, आइदर ऑफ द स्टूडेंट्स इज प्रेजेंट. आइदर मीन्स दोनों में से कोई एक. ठीक है, दोनों में से कोई एक. आइदर ऑफ द स्टूडेंट्स इज प्रेजेंट, इज सिंगुलर. ओके, सो दोनों में से कोई एक प्रेजेंट है. आइदर राम और श्याम इज प्रेजेंट. अब यहाँ पर हमको नेम नहीं गिवन है, लेकिन यहाँ पर नेम गिवन है. तो जब आपको नाउन गिवन है दैट टाइम यू कैन यूज और, अदरवाइज आइदर विल ऑल्सो गो. यहाँ पर आपको नेम नहीं गिवन था, दैट्स वाई वी यूज स्टूडेंट्स इन जनरल. ओके,
but here name is given, therefore either Ram or Shyam is present. Now see in this, neither of the boys are naughty. दोनों में से एक भी बॉय नॉटी नहीं है. Neither of the boys, दोनों में से एक भी नॉटी नहीं है, ना ये है ना वो है. Neither Sia nor Ria is coming. I mean this, ना सिया आ रही है ना रिया आ रही है. See in this one, boys again general दे दिया, नेम नहीं पता था, but here girls का नेम पता है, इसलिए nor is used. So either, neither is used whenever you are talking about two person और दोनों में से कोई एक, either. Okay, so I hope distributive pronoun is also clear to you. And with this we end the session. In the next one we'll complete the remaining pronouns. Till then, take care. Good day.